Some time ago, I was explaining to the people in our church और कुछ समय पहले मैं अपने कलीसिया में कुछ समझा रहा था लोगों को the difference between the way the Old Testament prophets spoke and how Jesus spoke. और एक अंतर जो पुराने नियम के नबी और यीशु मसीह जो सिखाते और बोलते उसमें Our example is not the Old Testament prophets, it is Jesus Christ. और हमारा जो उदाहरण जो है वो पुराने नियम के नबी नहीं लेकिन यीशु मसीह खुद है। Jesus could speak very strong words, you serpents, you generation of vipers. और यीशु मसीह बहुत कठोर शब्दों में उनसे बात करता था, तुम सांप के वंश, इस तरह से। But at the same time, he could speak very tender words, saying, I don't condemn you, come to me, those who are weary. और उसके साथ वो बहुत कोमल और प्रेम के साथ भी कहता था कि जो बोझ से दबे हो तुम मेरे पास आओ। He knew exactly what is the right word for each person. यीशु मसीह जानता था एक सही शब्द हर व्यक्ति के लिए। And if we develop the habit of listening to the Lord, He will always have the right word for us at the right time. अगर परमेश्वर की सुनने की आदत को हम पा लेंगे तो हमारे पास हर एक व्यक्ति के लिए हर एक समय पर एक सही शब्द होगा। The Old Testament prophets always stood when they spoke. They were like teachers in a class. और पुराने नबी के जो नबी जो थे वो हमेशा एक क्लासरूम के एक शिक्षक के समान खड़े होते थे। Jesus rarely stood. Most of the time he sat and spoke to people. और यीशु मसीह कभी खड़े ज्यादा नहीं होते थे लेकिन वो बैठ के बात If करते you थे। read the Gospels, you see many times his sermons, he sat and spoke. और सुसमाचार में हम देखते हैं कई बार यीशु बैठकर अपने शिष्यों से बात And करता there's a है significance in that. और उसमें कुछ खास बात है। And that is, a teacher in a class stands up. और शिक्षक एक वर्ग के अंदर खड़ा होता है। But when a family is sitting around a table, the father sits at the head of the table and speaks to the family. लेकिन एक मेज जहां परिवार बैठा हुआ है वहां एक पिता मेज पर बैठकर परिवार से बात The करता Old है। Testament prophets were like teachers teaching Israel. और पुराने नियम के जो नबी थे वो एक शिक्षक के Whereas समान इस्राएलियों को सिखाते। Jesus was building a family with his disciples. लेकिन यीशु मसीह नए नियम में एक परिवार को अपने शिष्यों के साथ बना So रहा है। sometimes he stood, but many times he sat. कई बार वो खड़ा रहा लेकिन बहुत बार वो बैठे रहे। The important thing is not whether you stand or sit. The important thing is he was trying to show, I'm building a family. ये खड़ा रहना या बैठना ये मुख्य बात नहीं, लेकिन वो ये दर्शाना चाहता था कि मैं एक परिवार को बना रहा हूं। The best church is the church which is like a family trying to lead everybody to become like Christ. और सबसे उत्तम कलीसिया वो है जो एक दूसरे के साथ संगति के द्वारा एक दूसरे की सहायता करते हैं यीशु के समान बनने when के we लिए। say we are pressing towards the goal, और जैसे हम देखते हैं कि जैसे ये कहता है कि हम लक्ष्य की ओर आगे बढ़ते हैं, we must know what the goal is. हमें लक्ष्य को जानना जरूरी So I है। want to show you that in Romans 8:29. और रोमियो 8:29 के अंदर मैं आपको ये दर्शाना चाहता If हूँ। you've heard me, you've heard me say this many times, अगर आपने मुझे सुना है, बहुत बार आपने मुझे कहते सुना होगा, but I don't mind repeating it all my life. और मैं इसे दोहराने में मेरे जीवन भर में इसे समझता Because हूँ, I find that many Christians still haven't seen the goal clearly. क्योंकि मैं ये इस चीज को मैं मानता हूँ बहुत सारे मसीह लोगों ने इस अपने जीवन में उस लक्ष्य को नहीं जाना है। I used to work in the Navy for many years, और बहुत साल तक मैं नेवी में काम करता था and at night I would be on the top of the ship, guiding the ship towards our destination. और रात को मैं उस जहाज के ऊपर था और वहां पर रहकर मैं उनको एक मार्ग दिखाता था। And there's no land in sight anywhere. और वहां आसपास चारों तरफ कोई भी जमीन नहीं थी। Nowadays we have GPS and all that to find direction. और अब आज के समय में जीपीएस ऐसे बहुत सारे तकनीक हैं। 55 years ago there were no GPS. और 55 साल पहले ऐसे कोई तकनीक या जीपीएस नहीं So था। we had to find our position by watching the stars. और तब हमें अपना जो स्थान है वो तारे को देखकर प्राप्त करना होता था। And there's no land anywhere. There's no way to find out where we are. और वो जमीन वहां नहीं होती थी जिससे हमें पता चले कि कहाँ हम हैं। And we are going to a particular destination. और एक लक्ष्य है जो वहां हम जाते हैं। For example, once we were in the middle of the Indian Ocean और एक बार हम एक भारतीय एक समुद्र के बीच में and थे। then coming to Bombay, हम मुंबई आ रहे थे, and you can't see land anywhere. हमें कहीं पर भी जमीन नहीं दिख रही थी। How to know where I have to go? और कैसे ये हम जाने कि कहाँ मुझको जाना है। We had to find our position by the stars. और हमारी जो स्थान है उस तारे को देखकर हम We had a देखते compass. और कंपास जो उससे, And then you may set your direction to go towards Bombay. और उसके बाद अब एक दिशा निर्धारित करते कि मुंबई तरफ जाना है। But the waves are pushing us. लेकिन जो लहरें थी जो हमें पीछे खींच So रही even थी, though initially we set our direction correctly
to Bombay on the chart. और चार्ट के अंदर जैसे एक कोई गंतव्य जो था हमारा वहां पे लिखा हुआ था, दर्शाया गया था अच्छी तरह से। After a few hours, even though we didn't change direction, we are not going towards Bombay anymore. और हमने दिशा को नहीं बदला, लेकिन कुछ घंटों बाद हम मुंबई की तरफ नहीं जा रहे We are going towards Karachi. और कराची की तरफ हम जा रहे हैं, We don't want to go there. और हम वहां नहीं जाना चाहते। So we had to correct our course all the time. और हर समय हमारी दिशा को हमें सुधारना पड़ता था, Because sometimes the waves will be pushing us in another direction and we are going towards Cochin. और वहां पे लहरें जो हमें खींचती थी और कई बार हम कोचिन की तरफ आगे बढ़ते थे। So the Christian life is like that. और मसीह जीवन भी If you ऐसा ही don't है। have a clear goal, you will not correct yourself. और आपके पास आपके सामने अगर एक सही लक्ष्य नहीं तो हम आपकी दिशा को आप सुधार नहीं You say, पाओगे। okay, when we started out, we set our direction. ये बहुत अच्छी बात है कि पहले आपने अपनी दिशा को निर्धारित किया, But there are so many storms and waves that are pushing us in different directions. लेकिन एक बहुत सारे तूफान और लहरें हमें अलग अलग दिशा के अंदर खींच रहे So हैं। we have to be very careful that we are always got that goal in view. और हमें बहुत सावधान रहने की जरूरत है कि हम उस लक्ष्य की तरफ हमेशा अपने ध्यान को And लगाए रहे। When we are on a ship, you can lose your direction in 1 minute और जब हम जहाज पे होते एक मिनट के अंदर हमारी दिशा को खो because सकते the थे, wind and the waves push you in different directions. और जो लहरें जो थी वहां पे अलग अलग दिशा में हमें वहां ले जाती। And we had to plot our position on the chart clearly so that we know what is the direction I have to go now. और उस चार्ट पर देखकर हमारे स्थान को वहां पर लेना पड़ता ताकि हम जान सके किस दिशा में हमें आगे बढ़ना है। So you need to see what your goal is. और आपको ये जानना है आपका लक्ष्य क्या है। Romans 8:29. रोमियो 8:29 It says here that in the middle of that verse, he predestined us to be conformed to the image of his son. और वो बीच में वचन में लिखता है, पहले से ही हमें उसने ठहराया कि उसके पुत्र के स्वरूप में हम हो। And the English word predestined means he has in advance determined our destination. और अंग्रेजी भाषा में इस प्रकार लिखा है, जो ठहराया जाना कि पहले ही उसने हमारे उस दिशा को निर्धारित कर दिया है। What is the destination? हमारा गंतव्य क्या है? Just like you get a ticket in a train, destination Bombay. जैसे आप ट्रेन या बस के टिकट के अंदर लिखा हुआ आता है आपको मुंबई की तरफ जाना है, You're coming from Delhi or somewhere. आप दिल्ली से आप अगर आ रहे हैं So you'll go to a train that's going to take you to Bombay. आप उसी ट्रेन में जाएंगे जो आपको मुंबई ले जाएगा, Destination is already written there. और उस टिकट में आपका गंतव्य स्थान लिखा हुआ So है। the Lord has also made a destination for us the day we are converted. और जब हमारा उद्धार हुआ, परमेश्वर ने हमारे गंतव्य स्थान को पहले से ही निर्धारित किया हुआ है। There are many things we can do for Him on this earth. और बहुत सारी चीजें हैं जो धरती पर हम उसके लिए कर सकते हैं। We can do a lot of good. हम बहुत We सारी can अच्छी चीजें कर सकते हैं, witness to other people, औरों को हम गवाही दे सकते हैं, help the poor, गरीबों की सहायता कर and सकते go to हैं, church meetings. और कलीसिया में मीटिंग में जा All सकते that is हैं। good. ये सारी चीजें But अच्छी हैं, these are all helps towards our going to the destination. लेकिन क्या ये मदद है कि हम वो गंतव्य की तरफ जाने के My लिए? goal in life is not just to witness here and there. और मेरा लक्ष्य केवल ये एक ही सुसमाचार देना या गवाही देना उतना ही My नहीं goal है। in life is not just to do a lot of good to poor people. और मेरा लक्ष्य केवल एक गरीबों की सेवा करना उतना ही नहीं Those are है, all good things we do along the way. लेकिन रास्ते में ऐसी सारी अच्छी और भली चीजें हम But करते हैं। our goal is God wants to make me like Jesus Christ. लेकिन मेरा जो लक्ष्य है, परमेश्वर मुझे यीशु मसीह के समान बनाना So चाहता the है। day I was converted, even though I did not know it, that was written on my ticket. और जब मेरा उद्धार हुआ, यहाँ तक कि मुझे नहीं पता था, मेरे टिकट में वो गंतव्य स्थान लिखा हुआ था, To become like Jesus Christ. यीशु मसीह के समान बनने के And बारे में। because I did not know that as soon as I was converted, और इसलिए मुझे नहीं पता था उसको, जब मेरा उद्धार हुआ, so I didn't take that very seriously. और मैंने उसको गंभीरता से नहीं I लिया, thought the main thing is study the Bible और मैंने बहुत सारी वचन से बातें पढ़ी, and go to meetings, और वचन मैं सभाओं में गया, witness on the streets. और गलियों में मैंने प्रचार किया। What about becoming like Jesus Christ every day in my life? लेकिन प्रतिदिन मेरे जीवन में यीशु मसीह के समान बनने के बारे में क्या, That was not important for me और वो मेरे लिए महत्वपूर्ण नहीं है। for many years. बहुत सालों तक, Even after I got married, और मेरा विवाह हुआ तब the तक, important thing is to be with your wife, और तुम्हारा जो मुख्य भाग तुम्हारी have पत्नी है, children, and get them educated. और बच्चे होना, उनका फिर पढ़ाई होना। But what about becoming like Jesus Christ as a husband every day in the house? लेकिन एक पति होने के नाते परिवार में प्रतिदिन यीशु मसीह के समान बनने के बारे में क्या? I'll tell you honestly, that was not important for me. और ईमानदारी से मेरे लिए वो एक महत्वपूर्ण बात नहीं थी। Important thing was to make sure there's enough money to take care of the house needs and pay the rent and all that, और महत्वपूर्ण बात थी कि मेरे पूरा पैसा मेरे पास होता कि घर के खर्च में उठा and सकूं, make sure that you have enough food for the children, और ताकि ये मैं देखूं कि बच्चों के लिए अच्छा खाना हो, and get admission for them in some good school. और अच्छी स्कूल में उनका All दाखिला that हो। is good. ये
सारी चीजें अच्छी हैं, But what's the use of all that if you lose your temper at home and you complain and murmur and grumble? और इसका क्या फायदा होगा कि ये सारी चीजें करते हो, आप घर में अपने आपे को खो देते हो और आप कुड़कुड़ाते हो, गुस्सा होते हो। That's what I mean by not seeing our destination. और इसका मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ, हम अपने गंतव्य स्थान को नहीं And देख I'll पाते। tell you honestly, I lived like that for years और मैं ईमानदारी से कहता हूँ, कई सालों तक मैंने ऐसा जीवन जिया, till I got fed up of my life. और तब तक जब तक मैं पूरी तरह से मैं हार मान लिया अपने जीवन से, But I was still preaching. लेकिन फिर भी मैं प्रचार करता था। And then God had mercy on me और परमेश्वर ने तब मुझ पर दया and की, showed me my goal. और तब उसने मुझे अपना लक्ष्य दिखाया, That changed my life completely. और संपूर्ण तरीके से उसने मेरे जीवन को बदला, filled me with the Holy Spirit afresh. और एक ताजे पवित्र आत्मा के अभिषेक से भरा। And I began to see what my goal in life was. और तब मैंने मेरे जीवन के लक्ष्य को देखा, That is about 43 years ago. और 43 साल Then पहले I saw तब मैंने देखा my goal is to become, my ticket destination is to become like Jesus Christ. और मेरा तब मैंने देखा कि मेरा लक्ष्य जो है, जो मेरे टिकट पे लिखे हुए गंतव्य स्थान यीशु के समान बनने Everything का है। else must flow out from that, going after that destination. और सारी जो अन्य चीजें हैं जो वो गंतव्य स्थान की ओर बढ़ना है, उसके साथ साथ होना चाहिए। But in the last 43 years, I've done a lot of ministry. लेकिन पिछले 43 साल के अंदर बहुत सारे सेवकाई के कार्य मैंने किए, Ministry is not the big thing for me now. लेकिन अभी सेवकाई मेरे लिए बड़ी चीज, मुख्य बात नहीं। It flows, ministry today is to me the overflow of my becoming like Jesus Christ more and more. और मेरी सेवकाई जो है, जो मेरे परमेश्वर के साथ बनना जो लक्ष्य है, उसका परिणाम स्वरूप होना In चाहिए। other words, flowing from within. इसका दूसरा मतलब कि अंदर से वो बहना चाहिए। See, a lot of ministry is the Holy Spirit working from the outside of a person. और बहुत सारी सेवकाई में पवित्र आत्मा व्यक्ति के बाहरी तौर से कार्य करता है। See, if you pour water on this closed bottle, ये बंद जो शीशे, उसके ऊपर अगर आप पानी डालते हैं keep on pouring, और डालते रहे, the water will flow and satisfy the thirst of many people. और पानी जाकर औरों की भूख जो प्यास है उसको संतुष्ट करेगा। But if this bottle is full of dirt, लेकिन इस बोतल, इस शीशे के अंदर अगर गंदगी है, the dirt remains dirty. और वो गंद के अंदर गंदी ही रहता But है, the water is flowing and blessing people. लेकिन उसके आसपास से वो पानी बहकर औरों को संतुष्ट कर रहा है। That is how people were blessed in the Old Testament. और इसी प्रकार पुराने नियम के अंदर लोग आशीषित होते हैं। You think of a man like Samson. और ये एक मनुष्य के बारे में सोचे, समसून के समान, His heart was really filthy. और उसका जो हृदय था बहुत ही गंदा था, Any pretty girl he saw, he wanted to commit adultery. और कोई भी एक सुंदर लड़की देखा उसके साथ व्यभिचार करना चाहता, But God used him. लेकिन परमेश्वर ने उसे इस्तेमाल किया, Not to preach, but to deliver the Israelites from the प्रचार Philistines. प्रचार करने नहीं, लेकिन इसराइलियों को पलिस्ती से बचाने के लिए उसका इस्तेमाल किया। It says the Holy Spirit came on him और वचन में लिखा है पवित्र आत्मा उस पर आया many times. बहुत बार, Upon him. उसके ऊपर, Upon him. उसके ऊपर। And did he help people? So many Israelites were helped. और बहुत सारे इसराइली लोगों को उससे मदद मिली। Another chap called Gideon. और गिदोन के बारे में, It says the Holy Spirit came upon him. उसके ऊपर पवित्र आत्मा आया And he delivered Israel from the Midianites. और मिद्यानियों के हाथ से इसराइली को उसने बचाया। He did a great deliverance. बहुत छुटकारे का अद्भुत कार्य किया। Entire Old Testament is like this. और पुराना पूरा The जो नियम है Holy उस Spirit प्रकार है। came upon David. और दाऊद के ऊपर पवित्र He आत्मा आया he wrote the Psalms. और उसने भजन लिखे He delivered Israel from their enemies. और अपने शत्रुओं से इसराइलियों को छुड़ाया, Killed Goliath. गोलियात को मारा। But inside David's heart, लेकिन दाऊद के हृदय के भीतर if he saw a pretty girl, he would commit adultery with her, अगर एक सुंदर स्त्री को देखता है उसके साथ व्यभिचार करता, kill her husband, उसके पति को मार दे, marry her. उसके साथ विवाह करे। How filthy that heart inside was. और ये हृदय अंदर कितना दूषित है, But God used him. लेकिन परमेश्वर ने उसको इस्तेमाल किया। I'll give you Moses, for example. He was a very good man. अब मूसा के बारे में उदाहरण देते, बहुत ही एक अच्छा Very व्यक्ति है, humble man. बहुत ही नम्र व्यक्ति, But once he disobeyed God. लेकिन उसने एक बार परमेश्वर की आज्ञा पालन No, नहीं किया। God told him once to hit the rock परमेश्वर ने एक बार चट्टान को मारने के लिए कहा, as soon as they came out of Egypt. जैसे वो मिस्र से बाहर निकला And water flowed. और वहां से वो पानी निकला। 40 years later, 40 साल के बाद again, when they were thirsty, और बार जब वो प्यासे हुए, this time God said, don't hit the rock. इस बार परमेश्वर ने कहा चट्टान को मारना नहीं है, Because the meaning was, you don't crucify Christ a second time, only once. इसका मतलब ये कि आप यीशु मसीह को और दूसरी बार क्रूसित नहीं करते, वो एक ही बार Christ होता is to है। be crucified only once. यीशु मसीह को सिर्फ एक ही So बार the क्रूसित चढ़ाया rock गया must be hit only once. और वो जो चलाटी थी एक ही बार चलानी थी। So God told Moses, this time speak to the rock.
और अब परमेश्वर ने कहा सिर्फ चट्टान से बोलना है and the water will flow. और वहां से जल निकलेगा। But Moses was so angry और वहां पर मूसा इतना गुस्सा क्रोधित था with the people. और लोगों के साथ क्रोधित था He hit the rock. और उसने चट्टान पर मारा He disobeyed God completely और पूरी तरह से उसने परमेश्वर की आज्ञा पालन नहीं and किया breaking the symbolism of the crucified Christ. और जो परमेश्वर को क्रूसित करना है दूसरी बार उसका उसने आज्ञा पालन As if he नहीं had किया to be crucified again. और जैसे चिन्ह के स्वरूप में वो दूसरी बार क्रूसित कर Now रहा my है। question is, अब मेरा प्रश्न ये है when he disobeyed God, जब उसने परमेश्वर का आज्ञा पालन नहीं किया did the water come out? और तब क्या पानी निकला? Yes or no? हाँ या नहीं? Yes? हाँ या नहीं? Yes. हाँ। Does God bless the work of a disobedient servant? क्या एक अनाज्ञाकारी जो शिष्य है उसके कार्य को परमेश्वर आशीषित करता है? Today you read of preachers who are living in sin in private आप अगर बहुत जो ऐसे प्रचारक है जो अपने निजी जीवन के अंदर पाप में जीवन जीते हैं and preachers are always taking money from the poor through their television program. और टेलीविजन प्रोग्राम के द्वारा वो गरीब लोगों से पैसा लेते हैं That is evil. और ये एक बुराई है To swindle poor people of their money is as bad as committing adultery with them. और ये एक गरीब लोगों से पैसे ले लेना एक व्यभिचार के समान ही है। There's no difference between catching a poor woman and committing adultery and taking money from a poor person. Same thing. और इसमें कोई अंतर नहीं कि आप एक गरीब व्यक्ति से पैसा लेते हो और एक गरीब स्त्री के साथ आप व्यभिचार करते हो। One is physical adultery, one is spiritual adultery. That's all. और एक भौतिक रूप से आपने एक व्यभिचार किया, दूसरे एक आत्मिक रूप से। And most preachers are doing it. और बहुत सारे प्रचारक आज They're ऐसा living कर in रहे हैं। spiritual adultery all the time. वो हमेशा आत्मिक व्यभिचार कर रहे हैं And there's so many dumb believers who just sit there and admire them. और बहुत सारे ऐसे मूर्ख विश्वासी है जिसकी सराहना कर रहे हैं They say God is blessing their ministry. और वो सोचते हैं कि परमेश्वर उनकी सेवकाई को आशीष दे रहा है। Let me tell you why. और मैं कहना चाहता हूं क्यों? Why did God make that water flow from that rock when Moses disobeyed him? और क्यों उस चट्टान से पानी निकला जब मूसा ने आज्ञा का पालन नहीं किया? Listen, सुनिए, because there were 20 lakh people there who were thirsty. क्योंकि वहां 20 लाख लोग थे जो प्यासे थे And God said, why should I punish those 20 lakh people just because one man disobeyed me? और एक आत्मा के आज्ञा पालन के नहीं किया उसके बारे में क्यों दूसरे लोगों को उसकी सजा That's दूं? why he made the water to flow. और इसके कारण उसमें से पानी निकला। So what I learned from that is और इससे मैं ये that सीखता हूं even when a man is disobeying God, God can still bless his ministry. अगर एक व्यक्ति परमेश्वर की आज्ञा का पालन नहीं करता फिर भी परमेश्वर उसकी सेवकाई को आशीष करता है। Not क्योंकि because he approves of the man. क्योंकि Of the preacher. वो प्रचारक को पुष्टि नहीं करता। No. नहीं, But because he loves the people. क्योंकि वो लोगों से प्यार करता है। So don't ever say, this man's ministry is blessed so many people, so he must be a man of God. और कभी भी आप ऐसा ना है कि इस व्यक्ति के सेवकाई के द्वारा इतने लोग आशीषित हुए इसलिए एक आशीषित व्यक्ति है। Jesus said in Matthew 7:22 and 23 और यीशु ने मत्ती 7:21-22 में कहा that in the last day many will come to me अंतिम दिनों में बहुत लोग मेरे पास आएंगे, and say, कहेंगे Lord, we preached in your name, और कहेंगे प्रभु हमने आपके नाम से प्रचार किया we healed the sick, और बीमार को चंगा किया and we cast out demons और दुष्टात्माएं निकाली in your name. यीशु के नाम से And the water came out. और पानी जल बह निकला। People were blessed. लोगों को आशीष मिला, People were healed. लोगों को चंगाई मिली Demons were cast out. और दुष्टात्माएं बाहर निकली People were blessed through my preaching. और प्रचार के द्वारा लोग को आशीष मिला। And the Lord will say to them, प्रभु उनसे go away कहेगा from me. मुझसे दूर हो जाओ, You lived in sin in your private life. अपने निजी जीवन में आपने पाप में जीवन जिया है। You read that in Matthew 7:23. और मत्ती 7:23 में आप इसको पढ़ते हैं। He said that. उसने ऐसा कहा You will actually see that in the final day. और वास्तव में ऐसा आप होते हुए अंतिम दिन में आप Some of देखेंगे। these great preachers whom you see on television, और आज टेलीविजन में सबसे बड़े you प्रचारक will को जो आज आप see देखते हैं Jesus saying to them, और आप देखेंगे यीशु मसीह उनसे ऐसा कहते Depart हुए, from me, you who live in sin. और आप जो पाप में रहते मुझसे दूर हो जाओ। You who took money from the poor to make yourself rich. और आपको खुद को धनवान बनाने के लिए आपने गरीबों का पैसा लिया You who bought planes and built big houses from the money of poor people. और गरीबों के पैसे से बड़े बड़े धनवान अपने बड़े बड़े घर बनाए। They'll say, but Lord, we cast out demons. लेकिन आप कहेंगे हमने दुष्टात्माएं We healed the निकाली, sick. हमने बीमारों को We चंगा preached किया sermons. और हमने People प्रचार were किए हैं, blessed. लोग आशीषित हुए। But you lived in sin. पर आपने अपना जीवन पाप में बिताया। Get away from me. मुझसे दूर हो And they जाओ। go to hell and you'll be surprised. और आप बहुत ही आश्चर्यचकित हो जाएंगे, I won't be वो surprised नरक because में डाल जाएंगे। मैं आश्चर्यचकित नहीं I won't be होऊंगा। surprised because I already read it in the Bible. मैं आश्चर्यचकित नहीं हुआ क्योंकि ये वचन में But लिखा all हुआ those है। who don't believe the Bible will be surprised. और जो वचन पर विश्वास नहीं करते वो लोग उस And दिन I've आश्चर्यचकित होंगे। seen many Christians who don't believe that. और बहुत सारे मसीह इस वचन पर नहीं They say विश्वास that करते can हैं। never happen.
और They उनको say, "That लगता है can ऐसा never happen." कभी नहीं ऐसा हो सकता। Let me ask you, मैं आपको पूछना चाहता what हूँ, did God do to Moses? परमेश्वर ने मूसा के साथ He क्या किया? disobeyed God. उसने आज्ञा hit पालन the नहीं rock. किया और चट्टान पर मारा। When God told him only speak to it. और जब परमेश्वर ने कहा कि सिर्फ कहना था, He disobeyed the picture of Christ must be crucified only once. और जो चित्र है यीशु मसीह का जो क्रूसित करना, उसको उसने आज्ञा पालन नहीं किया। You know, in Hebrews 6, it warns us, those who crucify Christ another time. इब्रानियों 6 के अंदर चेतावनी हमें देता है कि यीशु मसीह को बार बार जब हम क्रूसित That करते is हैं, what Moses was symbolically doing. और एक चित्र स्वरूप में मूसा ने वही किया, But the people were blessed. लेकिन लोग आशीषित हुए। 20 lakh people were blessed through his ministry. उसकी सेवा के द्वारा 20 लाख लोग आशीषित हुए। After they were blessed, लेकिन उनके आशीषित होने के then बाद God called Moses here. और फिर मूसा को परमेश्वर बुलाता है, Now, Moses, मूसा, you've been a wonderful servant of mine. और बहुत अद्भुत सेवक तू मेरा रहा है, 40 years you've been wanting to enter the promised land. और 40 साल से तू उसका वाचा के देश में प्रवास That was the प्रवेश करना thing you चाहता है, wanted most in your life. और हम सभी यही चाहते हैं हमारे जीवन में। You will not enter in. You're punished. लेकिन आप नहीं पहुंचेंगे, आपको सजा मिलेगी। That was the greatest punishment you could have given Moses. और ये सबसे एक बहुत ही बड़ी सजा जो उसको मिलती He मूसा could have को। said, Lord, give me leprosy, give me cancer, but let me go into the promised land. उसने कहा होगा मुझे तू मुझे कैंसर दे दे या मुझे कोढ़ की रोग दे दे, लेकिन मुझे उस कनान के देश में No. जाना है। लेकिन कहा नहीं, You have to be punished. आपको सजा लेनी You होगी, cannot go into the promised land. आप वाचा के देश में नहीं जा सकते। So even though God blessed his greatest servant in the Old Testament, he punished him for disobeying him. यहाँ तक परमेश्वर ने बहुत पुराने नियम के नबी को इस्तेमाल किया आशीष होने के लिए, लेकिन फिर भी उसको वो शिक्षा या दंड So मिला। don't ever evaluate a person's life by his ministry. और व्यक्ति के सेवकाई के द्वारा उसके जीवन का मूल्यांकन न करे। Life is different and ministry is different. जीवन दूसरा भाग है और सेवकाई एक दूसरा भाग है। God uses even Balaam. He was a false prophet and God used him. और एक झूठा प्रबोधक बलाम जो है, परमेश्वर उसका भी इस्तेमाल करता Do है। you know that Balaam prophesied about the coming of Jesus Christ to earth? क्या आप जानते हैं बलाम ने यीशु मसीह का दूसरे आगमन के बारे में नबूवत की है? Yeah, he said a star will arise from Jacob. और वहां वो लिखता है कि याकूब के कुल से एक तारा उत्पन्न होगा। Who prophesied that? और ये कौन भविष्यवाणी कर रहा है? Balaam, false prophet, एक बलाम, एक झूठा प्रबोधक है, who was finally killed as a magician and sorcerer. और एक जादूगर, एक जादू टोना होने के नाते वो उसकी मृत्यु अंत में होती So है। my point is, does God use people who disobey him? मुद्दा ये है कि क्या परमेश्वर जो आज्ञा पालन नहीं करते ऐसे लोगों को इस्तेमाल Says करता the है? Holy Spirit came upon Saul और सौल के ऊपर भी पवित्र आत्मा and he उतरा, prophesied. नबूवत की उसने। The most amazing thing is, अद्भुत बात ये थी, the man who wanted to kill Jesus Christ, और जो व्यक्ति यीशु को मारना चाहता था, he was the high priest called Caiaphas, और कैफास नाम पे एक महायाजक वो था, and he was planning to kill Jesus Christ. और वो योजना बना रहा था यीशु को मारने की। And just before he got him killed, और जब वो उसको मारने ही वाला था, it says in John 11 यूहन्ना 11 में हम पढ़ते हैं, that he prophesied something that was true. और उसने ऐसी कुछ नबूवत की जो सही था। Can you imagine a man planning to kill Jesus Christ prophesying the truth? आप क्या सोच सकते हैं कि यीशु मसीह को मारने की जो योजना बना रहा है वो एक सत्य नबूवत कर रहा है? He said in John chapter 11 यूहन्ना 11 में वो कहता है, that Jesus should die for all the people. और वहां कहता है यीशु सब Verse लोगों के, 50. Verse 50. John 11 verse 50. और 50 वचन में ये कहता है कि सारे लोगों के लिए एक मनुष्य मरे। And that, it says here in verse 51, he was prophesying. और ये अपनी ओर से नहीं, लेकिन वो महायाजक भविष्यवाणी कर रहा And he था। was prophesying not only for Israel, but that God will through that gather into one all the children who were scattered abroad. वो केवल इस्राएलियों के नहीं, लेकिन इस कार्य के द्वारा और जो तितर बितर हुए संतानों को वो एक करेगा। That was not a devil's prophecy. और ये कोई शैतान की नबूवत The नहीं Holy है, Spirit. पवित्र आत्मा, Because it says, because he was the high priest, क्योंकि वो एक महायाजक था they had put some oil on him and anointed him, और उसको एक In तेल the डालकर name of उसका Jehovah. अभिषेक किया यहोवा के नाम से, and he prophesied. वो नबूवत करने लगा। But where is Caiaphas today? लेकिन आज ये कैफास कहाँ है? He's gone to hell. वो नरक में है। But God used him on earth. लेकिन धरती पर परमेश्वर ने उसका इस्तेमाल किया। Balaam. बलाम, And so also many of today's preachers. और वैसे ही आज के उसी प्रकार अनेक प्रचारक हैं। But something happened on the day of Pentecost. लेकिन पेंतिकोस के दिन कुछ हुआ। You know, in the Old Testament, there was a temple with a veil showing that you cannot come into the most holy place. और पुराने नियम में वाचा के तंबू के अंदर परम पवित्र स्थान के बीच अंदर जाने के अंदर एक पर्दा होता था, That was a picture of man's spirit.
और वो मनुष्य की आत्मा का चित्र है। The tabernacle had three parts, और जो वाचा का तंबू 3 भाग थे, picture of man's body, soul, and spirit. और मनुष्य के जो 3 भाग है, शरीर, प्राण और आत्मा। And the way into the spirit was closed in the Old Testament. और पुराने नियम के अंदर जो पर्दे के द्वारा आत्मा का भाग बंद होता था। God was saying, I cannot come into your spirit. परमेश्वर कहता मैं आपके आत्मा में नहीं आ सकता। It's like this lid on top of it. I cannot pour into this. ये उस प्रकार है कि मैं इसमें पानी नहीं डाल सकता, इसके ऊपर डाल सकता हूँ। Supposing this is the veil, मान के सोच के देखिए, अगर ये पर्दा है here's the spirit. और ये एक आत्मा है, The Holy Spirit comes, he cannot go in, पवित्र आत्मा ऊपर से आता है लेकिन अंदर नहीं जा पाता, but he blesses many people. लेकिन उसके द्वारा और लोगों को आशीष The मिलती water है। flows and can feed 20 lakh people. और पानी बहता है और बहुत सारे लोगों को वहां से आशीष मिलती है। But Jesus said यीशु ने कहा in John chapter 7, यूहन्ना 7 अध्याय में, if anyone is thirsty, verse 37, 37 वचन में, if anyone is thirsty, let him come to me and drink. यदि कोई प्यासा हो मेरे पास आए और पिए। Thirsty for what? किसके लिए प्यास? Thirsty for a life of God inside. परमेश्वर के जीवन के लिए एक भीतरी प्यास, Not to be used by God. परमेश्वर के द्वारा इस्तेमाल होने की प्यास A नहीं। lot of people want to be used by God. बहुत सारे लोग परमेश्वर के द्वारा इस्तेमाल किए जाना He's चाहते हैं। not calling such people. परमेश्वर ऐसे लोगों को नहीं बुला रहा। Because then he'll have to call the Balams and the Caiaphases and them also. और फिर हम बेलाम और काइफास जैसे लोगों को ही बुला रहे No, हैं। he's not calling them. परमेश्वर ऐसे लोगों को नहीं बुला He's रहा। saying those who are thirsty for the life of God inside, और ऐसे लोग जो परमेश्वर के जीवन के लिए भीतर से प्यासे हैं, come to me वो कहते हैं मेरे पास आओ, and drink from me. मुझसे पियो। Now, drinking is different from water being poured on my head. और पीना, पानी पीना, ये बहुत ही इसमें अंतर है। और मेरे ऊपर अगर पानी डाला The उसमें Holy अंतर Spirit है। can fall over me like a river और पवित्र आत्मा मेरे ऊपर एक नदी के समान गिर सकता है and bless many people. और उसके द्वारा अन्य लोगों को this आशीष is मिल सकती different. है। ये भिन्न है यहाँ This पे। is drinking, और यहाँ पे पानी where पीना the है। water is going inside, अब पानी जल जो है भीतर It's जाता like- है। taking out the veil, अभी आपने उस पर्दे को निकाल दिया, and the Holy Spirit going inside, अब वो पवित्र आत्मा भीतर जा and रहा then है filling, और वो भरते 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 and जा रहा है overflowing, और अब वो उमड़ and रहा then है blessing 20 lakh of people. और तब 20 लाख लोगों को आशीष मिल रही है। That is different from blessing 20 lakh with falling outside. और ये बहुत ही अलग है जहां से बाहरी तौर से पवित्र आत्मा का So लोगों को Jesus आशीष said in मिलना। this New Testament, नए नियम में यीशु कहता है you will drink, the water will go inside, आप वो जल को पिएंगे, वो जल आपके And verse भीतर जाएगा। 38, और 28 वचन में, then from the innermost being, from inside it will overflow as rivers of living water, verse 38. और उसके बाद हम 38 वचन में देखते हैं कि आपके भीतरी जीवन से जल के जीवन के झरने The बहेंगे। important thing is not the rivers of living water. और यहाँ पे मुख्य बात जीवन के जल के झरने नहीं That है। Moses also experienced. और मूसा ने भी उसका अनुभव किया। But here it says, from the innermost being it will flow. लेकिन यहाँ पे मुख्य बात है कि आपके भीतरी जीवन से बहेगा। David, Samson never had that. और दाऊद और शमसून के पास ये अनुभव नहीं But था। on the day of Pentecost, लेकिन पिन्तेकोस्त के दिन, this veil was rent when Jesus died. और जब यीशु का मृत्यु हुआ, ये पर्दा And ऊपर now से the नीचे veil तक was फट गया। way into the spirit was open. अभी आत्मा को जो Now पर्दा है the अभी खुला Holy हुआ है। Spirit could come and fill man's spirit अब पवित्र आत्मा आकर मनुष्य की आत्मा को भर and सकता है change his life inside. और भीतर से उसका जीवन बदल सकता And है। from inside would flow the rivers of living water. और फिर भीतर से जीवन के जल की So, नदियां बहती है। new covenant ministry is different from old covenant ministry. और नई वाचा की जो सेवका है, सेवकाई पुरानी वाचा की Old सेवकाई covenant से ministry, अलग है। old covenant ministry is just getting a gift, पुरानी वाचा में केवल हमें एक तोहफा मिलता था, वरदान मिलता था, powerful gift. एक बहुत ही सामर्थ्य Can वरदान। even raise the dead like Elijah. और एलिया जो लोग मृत्यु से जिलाने का भी वरदान। But what about Elijah's inner life? लेकिन एलिया के भीतरी जीवन के After बारे में क्या? raising the dead, एक मुर्दे को जिलाने के बाद he ran away when one woman called Queen Jezebel threatened him. और वहां पे येजबेल जो उसको धमकी देती, एक स्त्री, उसके बाद वहां से भाग जाता है। Imagine a man of God being afraid of a small woman. और सोच के देखिए, एक परमेश्वर का जन एक छोटी स्त्री से डर कर भाग रहा है। He was not afraid of 850 false prophets. और वहां पे 850 जो बाल के जो प्रबोधक थे, उनसे वो नहीं डरता But है। when one woman said, I'll chop off your head, he ran away. और वहां पे एक स्त्री ने कहा, मैं तेरा गर्दन काट दूंगी, वहां से भागता है। Is this the man who brought fire from heaven? और आप सोचेंगे यही व्यक्ति है जो स्वर्ग से वो आग उतारी Is this the man who blessed hundreds of thousands of Israelites? और हजारों लोगों, सैकड़ों लोगों को, इसराइलियों को ये व्यक्ति ने आशीष दी, Because the Holy Spirit was upon him. क्योंकि पवित्र आत्मा उसके ऊपर था। Inside he had fear. लेकिन उसके भीतर भय था, Fear of man, fear of a woman. एक स्त्री का भय, एक And मनुष्य का not भय। only that, he was so discouraged. और उतना ही नहीं, एक निराशा भी उसमें It's the थी। same Elijah.
और वही एक एलिया who brought fire from heaven, who brought rain from heaven. जो स्वर्ग से एक अग्नि को उतारता है, बारिश को लेकर Goes आता and है hides in a cave और वो अपने आप को एक गुफा में छुपाता है and said, Lord, take away my life. I don't want to live on this earth. और परमेश्वर कहता है प्रभु तू मेरे जीवन को ले ले, मैं नहीं जीना चाहता। Imagine the great prophet सोच के देखिए एक महान नबी after परमेश्वर का bringing fire and rain from heaven saying, I don't want to live on this earth. जो आग और जल को आकाश से बरसाता है और Why? कहता है अब मैं जीना नहीं चाहता। Why? क्यों? Lord, this woman is chasing me. ये स्त्री मेरा पीछा kill कर me. रही है मुझे मारने के लिए। You see what Elijah was inside? आप सोच सकते हैं एलिया जो भीतर Even से though क्या the था, Spirit was upon him to do such mighty miracles. यहाँ तक कि पवित्र आत्मा उसके ऊपर था अद्भुत सामर्थ्य काम करने के लिए। Take John the Baptist, the greatest prophet. और यूहन्ना बपतिस्मा जो सबसे बड़ा नबी The जो था, Spirit was so much upon him पवित्र आत्मा इतना अधिक उसके ऊपर that when था he preached in a desert, people came all the way from the city to the desert to listen to him. और जब उसने प्रचार किया वो जंगल के अंदर शहर से लोग उसको सुनने के लिए आते। No advertisement, no notices, nothing. कोई वहां पर प्रसिद्धि या जाहिरात नहीं होती थी Have वहां। you ever heard of a man preaching in the desert and everybody from the city goes to listen क्या to आपने him? कभी ऐसा सुना है कि कोई जंगल में कोई प्रचार करा और शहर से लोग उसको सुनने जा रहे हैं? He was an amazing prophet. बहुत ही अद्भुत प्रचारक वो था, But what about inside? लेकिन भीतर से वो क्या था? He was locked up in prison by Herod once, और हेरोद ने उसको एक कैद खाने में बंद किया and he began to sit there and think, और वो अंदर बैठ के सोच रहा है, why is this Jesus not setting me free from the prison? और वो सोच रहा है क्यों यीशु मसीह मुझे इस जेल खाने से नहीं छुड़ा रहा। So he began to have a doubt. और वो शंका कर रहा है, Is this really the Messiah? और क्या सच में ये मसीहा है? I mean, he had seen the Spirit come upon him and heard the voice from heaven saying, this is my beloved son. और यूहन्ना बपतिस्मा ने देखा पवित्र आत्मा को यीशु पर उतरते हुए कहते हुए No. ये मेरा प्रिय पुत्र है। You may think, if I had ever heard that, I'll never doubt in my life. और आप कहेंगे मैं अगर ऐसा सुनता तो मैं कभी ऐसा संदेह He नहीं saw करता। it, he heard it, उसने देखा, उसने सुना, but he sits there in prison लेकिन वो कैदखाने में and he बैठकर sends a message to Jesus. और यीशु के पास संदेशा भेजता You है। read that in Matthew 11. और मत्ती 11 में हम इसे पढ़ते हैं, Are you really the Messiah? क्या सच में तू सही मसीहा है? I say, is this John the Baptist? या क्या सच में यूहन्ना बपतिस्मा करने वाला Some है? other person asking that question I can understand. मैं समझ सकता हूँ कोई अन्य व्यक्ति इस प्रश्न को पूछे। Peter and James and all did not hear the voice from heaven and the dove descending on him. पतरस और याकूब ने कभी वो स्वर्ग से वाणी नहीं सुनी या उस कबूतर को जो स्वर्ग से उतरा नहीं देखा। This is how it was in the Old Testament. और इसी प्रकार वो पुराना नियम Even लिखा। John the Baptist, the Spirit was upon him, but not inside. इसी प्रकार यूहन्ना बपतिस्मा के ऊपर पवित्र आत्मा था, भीतर नहीं But था। when the veil was rent on the day Jesus died, और जब यीशु का मृत्यु हुआ और वो पर्दा फट गया, the way into man's spirit was open. अब जो द्वार है And- मनुष्य के हृदय आत्मा में जाने का खुल गया। If I drink, the Holy Spirit would come right in. और जो पवित्र आत्मा जब मैं पीता हूँ भीतर, And I've got to keep on drinking. और जब मैं उसे पीते रहता हूँ, And from the innermost being, the rivers will flow. और मेरे भीतरी जीवन के द्वारा वो जीवन के जल के झरने And it बहेंगे। says here in John 7:39, और यूहन्ना 7:39 में लिखा है, last part, अंतिम भाग, the Spirit was not yet given because Jesus was not yet glorified. और क्योंकि आत्मा अब तक न उतरा था, क्योंकि यीशु अब तक अपनी महिमा को न पहुंचा था। Now, all of you are so clever in your earthly subjects. और आप जो सब अपने दुनिया के विषयों के अंदर बहुत चतुर और Some बुद्धिमान of हैं, you are postgraduates in your college education. और आपके कॉलेज के अंदर आप पोस्ट ग्रेजुएट हैं। When you read that, did any doubt come into your mind? जब आप इसको लिखते पढ़ते हैं, क्या कोई संदेह आपके मन में आता है? What do you mean the Spirit was not given? How many people in the Old Testament had the Holy Spirit? और इसका मतलब क्या होता है? आत्मा अब तक न उतरा था। पुराने नियम के बारे में क्या? John the Baptist, Elijah, David all had. What do you mean Spirit was और not यूहन्ना yet given? बपतिस्मा, दाऊद, एलिया, सबके ऊपर पवित्र आत्मा था। If you don't stop and ask such questions, you will remain ignorant of the Bible. अगर आप वहां पे रुक कर प्रश्न को नहीं पूछते हैं तो आप अनदेखे रहेंगे मसीह के वचन के लिए। I read this Bible for 16 years before I asked that question. Why is it written like that? और इस प्रश्न को पूछने के पहले 16 साल तक एक मसीह जीवन मैंने जिया, बाइबल को And पढ़ा। when I understood it, it changed my life. और जब मैंने इसको समझा, मेरा जीवन बदल You गया। know, when you read the Bible carelessly, you will never get what God wants you to have. आप सावधानी से जब वचन को नहीं पढ़ते, तब आपके पास परमेश्वर जो देना चाहता है वो नहीं होगा। And that's why you see something which I explained, which is already written in your Bible there. आप जैसे मैंने इस वचन को देखा, ये वचन आपकी बाइबल में पहले से ही What लिखा is the हुआ है। difference? I just read it slowly, that's all. ये पहले से लिखा, मैंने इसको धीरे से पढ़ा है। Then I saw तब मैंने देखा, the Spirit was not yet given to dwell inside man. और तब That's the meaning. और इसका अर्थ यह है कि पवित्र आत्मा भीतर रहने के लिए नहीं उतरा था Because तभी। he's speaking about innermost being in verse 38. और 38 वचन में जो अपने भीतरी जीवन के बारे में That बात कर रहा innermost है। being experience the Holy Spirit was not the Holy Spirit was not given for man. और पवित्र आत्मा तब तक नहीं दिया गया था अपने भीतरी जीवन के लिए, Because मनुष्य के लिए, Jesus was not yet glorified.
क्योंकि यीशु तब तक महिमा को न After पहुंचा Jesus था। was glorified, जब यीशु का महिमा then में the पहुंचा, Spirit was given to dwell inside man. तब पवित्र आत्मा मनुष्य के भीतर में रहने के लिए दिया गया। That's why you read sometimes in the Old Testament, God spoke to Abraham, Samuel from the outside. तब पुराने नियम में हम पढ़ते हैं, कई बार परमेश्वर ने अब्राहम शमूएल से बात की बाहरी तौर से। But in the New Testament, नए नियम He में speaks from within भीतर से बात करता है, because the Holy Spirit has now come inside. लेकिन अब पवित्र आत्मा भीतर है। I hear God speaking to me as clearly as Abraham heard Him from the outside. मैं परमेश्वर को बात करते हुए इतने साफ तरीके से सुन पाता हूं जैसे अब्राहम ने उस वचन को, उस वाक्य को सुना। See, Abraham didn't have God with him all the time. और अब्राहम के साथ परमेश्वर कभी हमेशा नहीं था हर But I समय, have God with me all the time. लेकिन मेरे साथ हमेशा परमेश्वर Wherever है। I go. हर कहीं जहां मैं जाता It's a हूं। wonderful thing to have the Holy Spirit within. ये बहुत अद्भुत बात है कि पवित्र आत्मा हमारे भीतर But है, you can have that experience to be filled with the Holy Spirit. और पवित्र आत्मा से भरने का ये अनुभव आपके पास हो सकता है, Not once in a while, और एक बार नहीं, all the time. हर समय। If you long not for ministry but for life. यदि आप सेवकाई को नहीं लेकिन उस जीवन की चाहत को रखें, If you're thinking the Holy Spirit must use me, अगर आप सोचे कि पवित्र आत्मा केवल मेरा इस्तेमाल करे, then go to the Old Testament. तब आप पुराने नियम में जाए। But you say the Holy Spirit must make me like Jesus inside, लेकिन आप अगर ये कि पवित्र आत्मा मुझे यीशु के समान बनाए, then come to the New Testament. तब आप नए नियम में And हैं। then God will also use you, but first the water will come inside and then flow out. और तब पवित्र आत्मा तब भी आपका इस्तेमाल करेगा, लेकिन भीतर से वो जीवन बाहर निकल That कर means और को आशीष He'll देगा। clean up your heart first. इसका मतलब आपके हृदय को पहले शुद्ध Very, करेगा। very important to understand ये this. बहुत ही मुख्य बात समझने This की है। distinction between the New Covenant and the Old Covenant. और ये अंतर जो पुराने और नए नियम के बीच में In जो है, all my life, I never heard any preacher explain this और to me. मेरे पूरे जीवन भर किसी प्रचारक ने प्रचार किया ऐसा मैंने कभी नहीं सुना There इस may be विषय a few पर। people here and there preaching it, but I never heard anyone. और आज शायद सुना होगा, लेकिन मैंने कभी नहीं सुना। I want to ask all of you. मैं आपको ये पूछना You've चाहता read हूँ, many books, you've heard many preachers. आपने बहुत सारे प्रचारकों को सुना है, पुस्तकें आपने Have पढ़ी you है, ever read or heard anywhere someone explaining this difference to क्या you? आपने कभी ऐसा पढ़ा है इस अंतर को इस प्रकार सिखाने या But it's there in the समझाने के Bible. लिए? ये वचन में है। That shows how ignorant people are who read the scriptures. और कितने अज्ञान हम हैं वचन को पढ़ने में, ये And दर्शाता I'll tell है। you the reason. मैं कारण They बताता are हूँ, more interested in being used by God rather than living like Jesus Christ. हम बहुत ही दिलचस्पी रखते हैं परमेश्वर के समान सेवकाई करने में, न कि बल्कि उसके समान जीने में। And if you want to be used by God, अगर आप चाहते कि okay, परमेश्वर आपका you cast इस्तेमाल out करे, demons, you heal the sick, अगर आपको दुष्ट आत्माएं निकालनी है, चंगाई करनी and है, preach प्रचार to करना है thousands of people, हजारों लोगों को, finally the Lord may say, you lived in sin, get away from me. और अंत में प्रभु कहेगा कि तू यहाँ से दूर हो जा, तूने I पाप don't- में I जीवन don't want to बिताया। hear that. और मैं कभी ऐसा सुनना नहीं I say, चाहता। I don't care if I never cast out a demon in my life. और उससे कोई अंतर नहीं होता कि मैंने कभी अगर किसी दुष्ट I आत्मा don't को नहीं care if निकाला, I never preach a sermon or heal a sick person. और कभी किसी को चंगाई न किया, और कभी कोई प्रचार न किया हो, I want to be free from sin. लेकिन मैं पाप से मुक्त होना चाहता हूँ। Now, supposing a man comes to the Lord आप सोच के देखिए, अगर कोई व्यक्ति यीशु के पास and आता says, है, Lord, I was gripped by the fact that I can be free from sin. अगर वो आके कहता है कि प्रभु इस सत्य से मुझे बहुत आशीष मिली कि मैं पाप से मुक्त I हो was सकता such a हूँ, slave to anger, मैं क्रोध का दास था, such a slave to dirty thoughts, और बुरे विचारों का दास था, such a slave to the love of money, और पैसों का लोभ मुझ में था, anxious, और बहुत चिंता हो करता, complaining, और कुड़कुड़ाना, grumbling about so many things, बहुत सारी चीजों के लिए फरियाद करना, backbiting, speaking evil of people. और लोगों के बारे में गलत बोलना, And I got fed up of that life. और उससे मैं थक चुका हूँ, And I sought you, Lord, और मैंने आपको ढूंढा and है, your Holy Spirit came और आपका पवित्र आत्मा and आया, delivered me from inside. और भीतर से मुझे पूरी तरह से उसने छुटकारा दिया है। But Lord, लेकिन प्रभु, I never cast out a demon. मैंने कभी पवित्र दुष्टात्मा नहीं निकाला, I never healed one sick person. मैंने एक भी बीमार व्यक्ति को चंगाई नहीं I दी, never even preached a sermon. मैंने एक प्रचार तक नहीं किया। This is the opposite of those people in Matthew 7. ये जो मत्ती 7 में लोग लिखे उसके विरोध में है। What will the Lord say to me? तब परमेश्वर उसने क्या कहेगा? Depart from me, you who never cast out a demon. क्या ऐसा कहेगा, आपने कभी दुष्टात्मा नहीं निकाला, मुझसे दूर हो जाओ? You think he'll say that? आप सोचते हो ऐसा कहेगा? Do you understand this? क्या आप इस सत्य को समझते हैं? I'm making it clear to you so that you see what is more important. मैं आपको इसको सरल भाषा में कह रहा हूं ताकि आपको ये समझ सके कि मुख्य बात क्या है। Turn with me now to Matthew chapter 7. मत्ती 7, You'll never hear this anywhere else. You'll hear it from me. जो आज ये आप मुझसे सुन रहे हो, कहीं आप नहीं सुन पाएंगे। Many, verse 22, 22 वचन, many people वहां लिखा है, बहुत से लोग will come to me and say, और मेरे पास आकर कहेंगे। what all did they do? वो उन्होंने क्या क्या किया? Prophesied in your name. भविष्यवाणी मेरे नाम से की। Not in some other name. These are Christians. और ये कोई और लोग नहीं, मसीही लोग हैं। In Jesus' name we preached. यीशु के नाम से उन्होंने प्रचार किया, Jesus' name we cast out demons. और यीशु के नाम से In दुष्टात्मा को Jesus' name निकाला, we
performed not one miracle, many miracles. और एक नहीं अनेक चमत्कार यीशु के नाम से किए। Most of us have not done even one miracle in our life. और हमारे जीवन में शायद एक भी आश्चर्य का हमने नहीं These किया, fellows did many miracles in the name of Jesus. लेकिन यीशु के नाम से यहाँ लिखे गए व्यक्ति ने बहुत आश्चर्य कर्म किए। I will tell them, और मैं खुलकर उनसे कहूंगा, I never knew you. मैंने तुम्हें कभी नहीं जाना। Depart from me, you who live in sin. कुकर्म करने वालों मेरे पास से चले जाओ। Why were they sent away? और वो क्यों उनको वहां से निकाला गया? Only one reason. एक ही कारण, There was sin in their life. उनके जीवन में पाप था। Now you may not do miracles. आप शायद चमत्कार नहीं कर You say, सकते, Lord, we went to every meeting. और लेकिन मैं हर एक सभाओं में गया प्रभु, I sang in the choir. मैं क्वायर में गीत गाता I played instruments. और मैं यंत्र बजाता I helped in the organization of conferences. और सभाओं में कॉन्फ्रेंस के में मदद करता था। Ministry, 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 good. और सेवकाई से एक अच्छी बात है, But the Lord says, how did you live with your wife? लेकिन प्रभु कहेगा आप अपनी पत्नी के साथ कैसे रहे हैं, How did you relate to your parents? Did you honor them as father and और mother? आप अपने माता पिता के साथ कैसे रहे, क्या उनका आदर किया आपने? Those are more important to me than your singing in the choir and taking part in all और these external ये activities. दोनों चीजें मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इससे कि आपने क्वायर में गाया, चमत्कार या सेवकाई की, उससे बढ़कर So many young people today बहुत सारे जवान आज के in दिन churches कलीसिया में who live in such impurity, और ऐसे अशुद्ध जीवन वो जीते हैं, but they sing in the choir. लेकिन वो क्वायर में गीत गाते हैं। You know what the Lord will say to them? और आप जानते हैं परमेश्वर उनसे क्या And they कहेगा? stand and say, Lord, we sang in the choir. आप कहेंगे प्रभु मैंने क्वायर में गीत गाया, You never respected your parents. लेकिन परमेश्वर का आपने कभी अपने माता पिता का आदर नहीं किया, You just became like all those worldly people in your college. और आपके कॉलेज में अन्य जाति के समान आप बन गए, Dressed like them, talked like them. उनके समान पोशाक पहने, उनके समान आपने बोला। Don't tell me you went to a good church. और आप ये मत मुझसे कहे कि आप एक अच्छे कलीसिया में Don't गए, tell me you sang in the choir. आप मुझसे ये न कहे कि मैंने अच्छा Depart गीत from गाया। me, you who lived in sin, who brought disgrace to my name on earth. और कुकर्म करने वाले मुझसे दूर जाओ, जिसने मेरे अनुग्रह को व्यर्थ किया। I tell you, you मैं won't कहना hear चाहता that हूँ, from somebody else, but I'm telling you the truth so that you don't blame me in the day of judgment. और मैं आपको ये सत्य कहना चाहता हूँ ताकि न्याय के दिन आप मुझ पर दोष न लगाए। But on the other hand, लेकिन दूसरी तौर, supposing you really seek to be free from sin आप में सच में एक इच्छा है, and really seek to obey God's commandments, एक पाप से मुक्त होने के लिए, उसकी आज्ञाओं का पालन करने के लिए। maybe you were a mother with many children, so you could not attend many meetings, लेकिन अगर आप एक माता है और आप अपने घर के अंदर बच्चों की देखभाल करते हैं, and you did not have a singing voice, so you could never sing in the choir. आपके पास अच्छे गाने का आवाज नहीं, आप कभी भी गीत नहीं गा You सकते think the choir Lord में। will reject you? आपको लगता है परमेश्वर आपको तिरस्कार करेगा? Saying you never sang in the choir. आपको कहेगा कि आपने कभी क्वायर में गाना नहीं गाया, You didn't go to all the meetings. आप सभाओं में सारे नहीं गए। Let us understand proper values. यहाँ पे हम सच्चे मूल्यों को जाने। It's not how much God uses us, but whether He can work inside us to make us like Jesus Christ. और ये मुख्य बात नहीं कि कितना परमेश्वर हमको इस्तेमाल करता है, लेकिन ये मुख्य बात है कि भीतर आकर वो हमें कितना अधिक यीशु के समान बनाता I told है। you how in the ship, in the beginning, we chart our course from one place to Bombay, और जैसे मैंने पहले बताया कि हमने एक दिशा को निर्धारित किया मुंबई की तरफ आने के लिए, but that takes a few days to reach Bombay on a ship. लेकिन वहां मुंबई तक आने के लिए जहाज से बहुत दिन लगते And हैं, all the time, the waves and the winds are all pushing us different directions. और वहां पे आंधी तूफान आता है और अलग अलग दिशा में हमको So खींचता we have है, to plot our position and say, now I have to change my course now to go to Bombay. और वहां हमें दिशा को निर्धारित करके मेरे दिशा को मुंबई की ओर I लेना mean, है। you can even experience this if you're in a boat, in a lake. You can see how the boat gets pushed this way and that way with the अगर waves. आपको ये अनुभव करना है, एक झील के अंदर भी एक नाव में अगर बैठे तो इसको अनुभव कर सकते हैं, And you can see how the boat was facing in this direction, but now if you want to go there, you turn it a little to reach there. अगर आप एक नाव में बैठे आपकी इस दिशा में जाना है, आप उस दिशा में आप मुड़ते हैं, Because the waves are pushing you. और वो लहरें जो है, जो आंधी है, वो आपको खींच रही है। Exactly like that in the Christian life. और इसी प्रकार मसीह जीवन में I होता want to है। be like Jesus. मुझे यीशु के समान And there बनना are है, so many forces in the world and the devil pushing me this way and that way. और इस संसार में बहुत सारे दबाव है, शैतान के दबाव जो मुझे खींच I रहे have to हैं, keep correcting myself. लेकिन मुझे अपने आप को सुधारते No, रहना है, I've got to set this right. I've got to give up this. और मुझे इसको छोड़ना, इससे सुधारना Because है, I've got a goal. ताकि मैं उस लक्ष्य तक पहुंच सकूं। And I'll tell you another thing. और ये दूसरी चीज, It's a great help when you have other brothers also who have the same goal. ये बहुत ही इससे सहायता मिलती है जब आपके पास और भाई भी है जिनका एक ही लक्ष्य है, Who are pulling in the same direction. और वो भी एक ही दिशा में आगे बढ़ रहे See, हैं। another thing we used to have in naval practice was to rowing the boats. और नेवल जो हम लोग जो वहां पे प्रैक्टिस करते थे वो है कि नाव को जैसे खेते हैं, There'll be 8 people in a boat pulling.
और जैसे नाव में उस लकड़े से उसको नाव को खेते हैं, but you got to make sure they're all pulling in the same direction. लेकिन इसको स्मरण रखना कि एक ही दिशा के अंदर उसको हम Now, खे रहे हैं। if some fellow says, I want to go there, and one fellow says, I want to go there, अगर मान लीजिए एक व्यक्ति कहते हैं मुझे इस दिशा में जाना है, दूसरा इस दिशा में, your boat will never reach the destination. तब आपकी नाव आपके गंतव्य स्थान तक नहीं पहुंचेगी। So you got to make sure that everyone in the boat wants to pull in that direction. आपको ये निश्चित करना है कि आपके नाव में बैठे हुए हर व्यक्ति को उस एक ही गंतव्य की ओर जाना है। Especially the man who sits at the top of the boat guiding the boat. और जो मुख्यतः जो बड़ा व्यक्ति है जो ऊपर बैठा है उसके लिए, He's the one who directs the boat. और वही मुख्य व्यक्ति है जो वो उस नाव को दिशा दिखा रहा है। So a church is like a boat. और एक कलीसिया जो एक नाव के समान है। You got to make sure that you're in a church that's leading you to become like Jesus Christ. और आपको ये निश्चय करना है कि आप ऐसी नाव या ऐसी कलीसिया में हैं जो आपको यीशु की ओर लेकर जा रही If है। you go to a church, अगर आप ऐसी कलीसिया में जा रहे हैं primary emphasis is singing, और जिसके अंदर सिर्फ गीत गाने के ऊपर भार दिया and you जाता come है, away from the meeting अगर आप सभा से बाहर निकलेंगे and say, we had a wonderful time today in the singing. और आप कहेंगे बहुत ही अद्भुत समय रहा गीत गाने में, That is like going to a rock concert. और एक रॉक कॉन्सर्ट के अंदर जाने के People समान from है। a rock concert also say, what a wonderful time of singing we had. और वहां पर लोग बाहर फिर बाहर वहां से निकल के कितना अद्भुत समय वो था But do कहते you know हैं। that in Christian singing, लेकिन मसीह संगीत या गीत गाने it's में not a question of whether you had a good time. ये समय ये मुख्य बात है कि आपका एक अच्छा समय रहा। Did God accept your offering? क्या परमेश्वर ने आपके बलिदान को अपनाया? Did God accept your worship? क्या परमेश्वर ने आपकी आराधना को ग्रहण किया? I was telling my own church people the other day, और एक समय मैं अपने चर्च के लोगों से बता रहा था, after the time of singing, और गीत गाने के बाद, I said, okay, we all sang very wonderfully this morning. और आज सुबह मैंने बताया कि बहुत अच्छे गीत को आज But how सुबह to गाया, find out whether God accepted our singing this morning? और किस प्रकार हम जाने कि परमेश्वर ने मेरे गीत की सेवा या गीतों को ग्रहण किया है। We may have enjoyed our singing and swung our hips and our heads and all that, और and हमने clapped our hands. और ताली बजाते हुए हिलते हुए हमने गीतों का आनंद उठाया। Oh, we had a good time, there's no doubt. हमारे साथ एक अच्छा समय रहा, उसमें कोई संदेह But नहीं। the important thing is that this is not a rock concert. Did God accept our worship, our praise this morning? लेकिन मुख्य बात है कि आज सुबह के परमेश्वर ने हमारी आराधना को ग्रहण किया, आनंद उठाया। For that, you have to ask yourself this question. और यही प्रश्न हमें अपने आप को पूछना है। Not whether you were singing in tune. और आप एक लय में या सुर में गीत To गाते sing हो in tune नहीं, is good, आपका सुर में गीत but गाना that अच्छा is है, not the most important thing for God. लेकिन परमेश्वर के लिए सबसे अहम भाग नहीं है। Some people don't have musical ability. और कई सारे लोगों के लिए संगीत की एक They're not, कला नहीं होती they're है, not born with it. उनके साथ नहीं You जन्म can't लिया है, blame them. और उनको दोष नहीं There दे are some सकते। very godly people who can't sing properly. और बहुत ही एक ईश्वरीय लोग हैं जो ठीक से गा नहीं सकते। I said to them, God is seeing how you lived the last 6 days before you came here this morning. और मैंने उनसे कहा कि परमेश्वर देखता है कि पिछले 6 दिन आपने कैसा जीवन जिया और This आज आप is कैसे हैं। Sunday morning now. और आज रविवार की How सुबह did you है, live at home Monday to Saturday? और सोमवार से शनिवार तक घर पर आपने कैसा जीवन जिया? How do you live in your office? आपके दफ्तर में आपने कैसा जीवन जिया? Did you live a godly life? क्या आपने एक ईश्वरीय जीवन जिया? And then you come to bring an offering to God Sunday morning? और तब फिर रविवार को आप पर एक अच्छा बलिदान परमेश्वर के Even लिए if लेकर you आए। sing out of tune, God will be delighted and accept it. अगर आप लय में नहीं भी गाते लेकिन फिर भी परमेश्वर बहुत ही प्रसन्न होगा। But on the other hand, लेकिन दूसरी तरफ, if you were yelling and complaining and grumbling in your home throughout the week, और पूरे सप्ताह आपके घर में आप चिल्लाते हैं और and कुड़कुड़ाते हैं, doing all types of wrong things in your office, और दफ्तर के अंदर हर प्रकार की बुरी चीजें and करते getting हैं, angry with the people on the road when the traffic is held up, और ट्रैफिक होता है तभी लोगों के ऊपर आप गुस्सा होते हैं, and then you come here and sing like an angel on Sunday morning. और रविवार को यहाँ पर आकर फिर सरदूत के समान आप गाने लग जाते हैं, God's ears are shut. He says, I don't want to listen to it. और परमेश्वर अपने कान को बंद कर देता है, मैं नहीं सुनना चाहता, I don't want to listen to you. मैं तुम्हें नहीं सुनना चाहता। Do you understand that? आप समझते इस बात को? Have you ever heard any other preacher tell you that? क्या आपने और कोई प्रचारक को इस तरह कहते सुना है? You come and listen to me, you'll hear some things you never hear from और anybody आप else. मेरे पास आएंगे तो आप ऐसा कुछ सुनेंगे जो आप और से नहीं सुनेंगे, But you'll hear the truth, लेकिन आप सत्य को which सुनेंगे will help you in the day of judgment. और आपके न्याय के दिन में जिससे सहायता मिलेगी, That's the final examination. और वो अंतिम समय जब होगा। I say our church is like a tuition center where we train people for the final examination. और मैं कहता हूँ हमारा जो कलीसिया है एक तालीम संस्था के समान है जहां हम तालीम देते हैं लोगों Now को, they have 1-year tuition centers to train you for IIT and medical college and all that.
और अभी हमारे पास ऐसे ट्यूशन क्लासेस होते हैं जो आईआईटी बड़े बड़े से कोर्सेज के लिए They तालीम say देते we हैं, guarantee you'll get a seat in the best college. और वहां वो लोग अब ये निश्चय देते हैं कि आपको अच्छी कॉलेज में सीट मिलेगा। I say, this is what I say. और मैं उनसे कहता हूँ, You listen to everything I say, I guarantee you'll get 100% in the final examination. और मैं ये कहता हूँ अगर मैं जो आप कहता हूँ वो अगर आप सुनेंगे तो आपको 100% उस न्याय के दिन मिलेगा। The final examination, the final examination is when you stand before Jesus Christ. जो अंतिम परीक्षा है जब आप यीशु मसीह के सामने खड़े रहेंगे। You want to get 100% there? क्या आपको 100% वहां चाहिए, Or you want everybody to say, oh, what a beautiful way you sang today. लेकिन क्या आप ये चाहते कि धरती पर आपको आपसे आपसे कि कितना सुंदर आपने Oh, गाया how beautiful that service was. और कितनी सुंदर वो सभा थी, Or even, what a wonderful sermon that was. और आपसे कोई कहे कि कितना सुंदर वो आपने प्रचार किया, It's not going to give you marks in the final day. और इससे आपको कोई भी गुण नहीं मिलेंगे अंतिम दिन में। That is all the Spirit using us, coming upon us and using us. और ये उस प्रकार है जो पवित्र आत्मा आपके ऊपर आता है और आपको इस्तेमाल करता We है, cast out demons. और आप दुष्ट आत्माएं We निकालते हैं sang songs. और गीतों को गाते हैं, We preached. प्रचार करते हैं। What about sin? लेकिन पाप के बारे में क्या, What about the inner life? जो हमारे भीतर है। So when we think about forgetting the things that are behind and pressing towards the goal, और जब हम पिछली बातों को भूलकर आगे की ओर बढ़ने के बारे में सोचते हैं, we have to ask ourselves, what is the goal? और तब हमें पूछना है हमारा लक्ष्य क्या है। It is to become like Jesus Christ, क्या यीशु के समान बनना, which means to be more and more free from sin. जिसका मतलब और अधिक पाप से मुक्त होना है, Not to heal more sick people or preach more sermons. और ज्यादा प्रचार करना या बीमारों को चंगा करना वो मतलब नहीं होता। I'm not against that. मैं उसके विरोध में नहीं हूं, Since I started concentrating on the inner life, और जब मैं अपने जीवन पर इस बात पर ध्यान and करने the लगा, Holy Spirit began to show me that my goal in life is to become like Jesus Christ. और जब पवित्र आत्मा मुझे बताने लगा कि मेरा लक्ष्य यीशु के समान बनने का है, In the last 42 years, और पिछले 42 साल में, I didn't stop serving God. और मैंने प्रभु की सेवा करना बंद नहीं किया, I preached मैंने प्रचार किया, hundreds and hundreds of sermons, और बहुत सारे हजारों मैंने प्रचार cast out किया, demons, और दुष्टात्माओं को prayed for निकाला, the sick, और बीमारों के लिए चंगाई, everything. प्रार्थना की, सब कुछ किया। but now it is coming from within. लेकिन अब वो भीतर से आता है, It's from inside. The water is overflowing and blessing people. लेकिन अब वो भीतर से पानी बाहर निकलकर औरों को आशीष So दे रहा now है। I am concerned about the inside only. और मुझे ये भीतरी जीवन में मुझे I, चिंता है, I know that if I thirst and keep on drinking from Jesus, और मुझे ये पता है कि अगर मुझ में प्यास है और मैं यीशु से पीता रहता हूँ, this will automatically overflow. और तब वो पूरी तरह से अपने आप ही वो बहेगा If you बाहर। pour water into this open bottle, अगर ये खुली हुई बोतल में आप पानी डालते हैं, it will clean up the bottle first. वो पहले अंदर से बोतल को If it's all साफ dirty, करेगा, if it's all dirty, it'll clean it up. वो अंदर से सारी गंदगी को साफ And करेगा। the bottle has to do nothing. अभी वो पूरी तरह से साफ है, The bottle has to do nothing. बोतल को अपने आप से कुछ नहीं करना, Automatically the river will overflow and flow out from here and bless people in all directions. अपने आप से ही वो पानी बाहर बहने लगेगा और लोगों को आशीष देगा। That is true New Testament ministry. और यही नए नियम की एक सच्ची So, सेवकाई है। if you don't concentrate on your heart being clean, और अगर first, पहली बार अपने अपने हृदय को शुद्ध होने में आप अगर ध्यान नहीं देते you हैं, will always live with this old covenant ministry. तब तक आप एक पुरानी वाचा के समान ही I जियोगे। must sing well, आप I अच्छा must गीत preach गाएंगे, well, आप प्रचार I करेंगे must अच्छा, witness to others, औरों को गवाही देंगे, I must go to church regularly. और निरंतर All आप चर्च जाएंगे external ministry, 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 और ministry. सेवकाई 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 करेंगे। And you live at home आप घर पे with रहेंगे, your wife and your husband just like any ungodly man. लेकिन आप घर पर अपने पति या पत्नी के साथ एक अन्य जाति व्यक्ति के समान And your रहेंगे, children will be as worldly as any other worldly person in any college today. और अन्य जाति के बच्चों के समान ही आपके बच्चे उस प्रकार रहेंगे, They'll grow up to watch pornography और वो अश्लील चीजों को देखते हुए बड़े होंगे, and they'll grow up to dress like any worldly person, that there will be no difference between this sister and that worldly woman. और दुनिया के लोगों के समान ही वो अपने पोशाक को पहनेंगे और कोई अंतर नहीं होगा दुनिया के लोगों में और एक मसीह व्यक्ति के अंदर। But they'll be used, they'll be singing, लेकिन उनका इस्तेमाल होता है, वो they'll गीत be गाते हैं serving, witnessing, और वो सेवा करते हैं, गवाही देते हैं, and one day they'll stand before the Lord, लेकिन एक दिन आएगा वो परमेश्वर के सामने खड़े होंगे say, Lord, we sang in the choir, और कहेंगे प्रभु हमने क्वायर में गीत गाया we witnessed to so many people, और हमने बहुत सारे लोगों को आपकी गवाही दी we gave money for your work. और आपने आपकी सेवा में हमने दिया। The Lord will say, और प्रभु कहेगा, man looks on the outward appearance, और मनुष्य जो बाहरी रूप को देखता है, I look at your heart. पर मैं हृदय को देखता हूँ। Your heart was not clean, तुम्हारा हृदय पवित्र शुद्ध नहीं था it's full of impurity. और सारी अशुद्धता से भरा हुआ था। You thought you had the Holy Spirit. आपको लगा कि आपके पास पवित्र आत्मा है। The Holy Spirit makes people holy.
पवित्र आत्मा लोगों को पवित्र करता है। Remember that. It's not the amount of noise you make. और ये याद रखे, पवित्र आत्मा मतलब बड़ा बड़ा शोर करना वो नहीं होता। I often tell the story of this Pentecostal man who came to our church in Bangalore. और बेंगलोर में ये कहानी मैं अक्सर बताता हूँ, कलीसिया में एक पेंटिकोस्टल आदमी हमारे कलीसिया में आया। I never knew him. मैं उसको कभी नहीं He जानता था, came to me after the service. और सभा के बाद वो मुझसे मिला। He said, "You don't have the Holy Spirit here." उन्होंने कहा कि आपके पास पवित्र आत्मा नहीं है। I said, "How do you know? मैंने कहा आपको कैसे पता, How do you know whether I have the Holy Spirit? और आपको कैसे पता मेरे पास पवित्र आत्मा है या नहीं? Do you know how I talk to my wife? कि आपको पता है मैं कैसे मैं Do अपनी you know पत्नी से how बात do करता you know हूँ, how I handle money? और कैसे पैसों को मैं Do you know व्यवहार how करता I हूँ, bring up my children? कैसे बच्चों को बढ़ाता हूँ। Those are the ways you'll know whether I have Holy Spirit or not. और वो जगह पर ही पता चलता है कि पवित्र आत्मा आप में है या He said, नहीं। "Not all that. There's not enough noise here in this meeting." और ये सभा के अंदर शोर नहीं है। I said, that is the difference between you and me. और यही अंतर है तुम में और मुझ में। Your Trinity is Father, Son, and noisy Spirit. और आपकी जो त्रिएकता है पिता, पुत्र और शोर करना, My Trinity is Father, Son, and Holy Spirit. और मेरी जो त्रिएकता है पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा है। You keep your noisy spirit, I'll keep the Holy Spirit. और आपका शोर करने वाला आत्मा आपके पास रखे, मैं अपना पवित्र करने वाला आत्मा, पवित्र आत्मा मेरे पास When we रखता हूँ। stand before the Lord, we'll discover whether the Holy Spirit was noisy spirit or Holy Spirit. जब हम यीशु के सामने उस दिन खड़े होंगे तब पता चलेगा पवित्र आत्मा शोर का आत्मा है या पवित्र करने वाला आत्मा I है। believe in raising my voice and praising the Lord. और मैं इस चीज में मैं विश्वास करता हूँ, अपनी आवाज को उठाकर प्रभु की स्तुति I करने believe में, in clapping, raising my hands and everything. और अपने हाथों को उठाकर ताली बजाकर But प्रभु की I स्तुति also करने में। believe if it does not come from the innermost being, it's hypocrisy. लेकिन मैं ये भी विश्वास करता हूँ अगर वो मेरे भीतर से नहीं आ रहा तो वो एक पाखंड है। Because man listens to the outside, God listens to the heart. मनुष्य बाहरी तौर को देखता है लेकिन परमेश्वर हृदय को So when देखता we है। think of pressing towards the mark, और जब हम सोचते हैं उस निशानी की ओर दौड़ने के बारे में, please remember this, brothers and और sisters. भाई और बहन इस चीज को याद रखें, It is not ministry first. और सेवकाई पहले नहीं It है, is life first, ये जीवन पहले है, from which flows ministry. और इस जीवन के द्वारा फिर सेवकाई बहती है। And even if you don't do so much ministry like those others, और औरों के समान अगर आप सेवकाई ज्यादा नहीं कर पाते it will be pure. लेकिन आप पवित्र हैं, Would you rather drink one glass of pure water or gallons of filthy water? क्या आप एक शुद्ध एक ग्लास पानी पीना चाहेंगे या एक बहुत हजारों लीटर जो पानी है अशुद्ध पानी पीना चाहेंगे? One glass of pure water is worth much more than millions of gallons of dirty water. और एक बहुत हजारों गैलन पानी से जो दूषित है उससे अच्छा एक छोटा सा प्याला जिसमें शुद्ध पानी है वो अच्छा है। I've often said like this to the Lord, और मैंने अक्सर ये परमेश्वर से इस तरह कहा, Lord, I cannot bless people. और मैंने कहा प्रभु मैं लोगों को आशीष नहीं दे सकता, True blessing only comes from heaven. और सच्ची जो आशीष है वो स्वर्ग से ही आती है, But it has to flow through this pipe called Zach Poonen. लेकिन वो जो आशीष है इस पाइप जो जैक पुनन है उससे बहना है। I cannot produce the water. और मैं प्रभु की स्तुति नहीं कर सकता, I just want to keep the pipe clean और केवल मुझे वो पाइप जो है उससे शुद्ध रखना है so that people get some clean water. ताकि लोगों को शुद्ध पानी मिले। When it comes from heaven, it is pure. जब वो स्वर्ग से आता है तब वो शुद्ध But है, if it flows through a dirty pipe, लेकिन जब वो एक गंदे दूषित पाइप से बहता है, dirty thoughts, एक बुरे विचार angry words, और क्रोधित शब्द wrong attitudes to people, और लोगों की तरफ एक बुरा व्यवहार, by the time it comes through this pipe, it's filthy. और जब तक वो पाइप से बाहर निकलता है तब तक वो दूषित हो जाता है। Is it like that with क्या you? या क्या आपके साथ ऐसा है? Let's learn a lesson today. और आज इस पाठ को हम सीखें, Let's pray. प्रार्थना करें। Heavenly Father, स्वर्गीय पिता, please help us to remember what we have heard. प्रभु आपके वचन को याद रखने के लिए हमारी मदद करें। To put first things first, प्रभु पहली चीजें पहली रखने के लिए pray in Jesus' name. यीशु के नाम से मांगते हैं, Amen. आमीन।